ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ W15EJ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ R2MA, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੋਲਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਚੁਣਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਅੰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਰ, ਵੋਵਲ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AEIOU, ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਯਾਨੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ। ਪਹਿਲਾਂ W ਦੇਖੋ, W ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ E ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, E ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। R ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, R ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ M ਤੇ। ਜੇ M ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, M ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ T ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, T ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। K ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। U ਵੋਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਹੁਣ N ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। B ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, B ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ I ਹੈਗਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਹੈ, ਵੋਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ D ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। H ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ F ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। P ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, 3rd ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, 2 ਵਿਅੰਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 7ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
इधर 4 तो जे इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ उसका सज्जा पासा है, राइट साइड है, ये तो इसका राइट साइड होगी। इधरली साइड की है खब्बा, लैफ्ट। सानू की क्या होएगा, 4 दे खब्बे पासे 7वां अखर किहड़ा है। 4 तो असीं देखते हैं पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, 6वां और 7वां। खब्बे पासे देखना सी इधरली साइड, तो की मिलिया 7वें अखर ते एम मिलिया। तो जिहड़ा पहला ऑप्शन है ये की है, इसका राइट आंसर है। जे सज्जे पासे क्या होंदा फिर असीं इधर नूं चलदे, सज्जे हत्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसे सीरीज के उपर ही है। इत्थे अजिहे किन्ने स्वर हन, हुण की क्या होया, किन्ने स्वर हन जिन्हां विचों हर एक तो तुरंत पहला अते तुरंत बाद एक व्यंजन है। तुरंत पहला अते तुरंत एक बाद एक व्यंजन, यानी अजिहे आपां वोवल दसने हैं। इंग्लिश दे विच देखो, हाउ मैनी सच वोवल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट। अगे भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए और पिछे भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है साडी इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, यानी एक इस तरह का स्वर असीं चुनना है जिहदे अगे भी व्यंजन है और पिछे भी व्यंजन है। इसनूं ध्यान नाल सानूं देखना पऊगा भी किन्ने है, ये काउंट सानूं करने पैणगे। पहलां आपां देखो व्यंजन लभना है, लभना की असीं लभना स्वर, वोवल। असीं वोवल देखते हैं कित्थे कित्थे। एक तो देखो आ रहा ई है, एक साडे कोले होर देखो ए आ रहा, और उस तो बाद यू एक आ रहा, उस तो बाद आई फिर वोवल है। देखो वोवल कित्थे कित्थे आपां सारे आपां टिक कर लैंदे एक बार। आ सारे वोवल सी जिहड़े मैं टिक कर ले, होर कोई नहीं हैगा। हुण इन्हां वोवल्स दे विच आपां देखदे हैं पहला व्यंजन, इत्थे पहला व्यंजन हैगा ई तो पहला नहीं हैगा, एक संख्या हैगी, इहनूं छड्ड दो। ए तो पहला व्यंजन हैगा, बाद दे विच व्यंजन कॉन्सोनेंट जनी है नहींगा। अगे कॉन्सोनेंट सीगा, पिछे कॉन्सोनेंट नहीं हैगा, 9 है ना संख्या। आ देखो, तो इहनूं भी असीं कट देने, है नहींगा। हुण आ गए यू ते, यू तो देखो पहला भी साडे कोले के है जिहड़ा ओह कॉन्सोनेंट है, और बाद दे विच भी एन की है साडे कोले कॉन्सोनेंट है। तो आ साडे कोले सिलैक्शन हो गई एक जिहड़ा आ वाला यू है, ये साडे कोले वोवल इस तरह का है जिहदे अगे भी कॉन्सोनेंट है और पिछे भी कॉन्सोनेंट है। इहनूं असीं लै सकते हैं। ठीक है, अगे चलते हैं। अगला जिहड़ा वोवल है साडे कोल आई, उस तो पहला कॉन्सोनेंट हैगा, पर बाद दे विच की है 8 की एक संख्या, इहनूं नहीं असीं लैणा, ये छड्डता। तो साडे कोले किन्ने बने, सिर्फ इस तरह के एक बनिया। तो साडा ऑप्शन की होऊगा, सैकेंड होऊगा 1 तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन सी। जे असीं ध्यान नाल क्वेश्चन नूं करांगे बिल्कुल ये सही होऊगा। जदों सानूं क्या हुंदा अते, देखो इत्थे भी अते शब्द सी ना एंड, उदों दोनों कंडीशन नूं असीं पूरा करना हुंदा है। हुण अगे आपां इस तरह के क्वेश्चन करांगे जिथे और आऊगा। अगे चलदे हां, अगला क्वेश्चन देखो, हेठां दित्ते प्रबंध का ध्यान नाल अध्ययन करो अते हेठां दित्ते प्रश्नां दे उत्तर दिओ। तां आपां स्टडी करनी है सीरीज नूं, और जिहड़े क्वेश्चन ने उन्हां दे आंसरज देने आपां। पहला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन इस दे विच, उपरोक्त प्रबंध विच अजिहे किन्ने स्वर हन जिन्हां तो तुरंत पहला एक संख्या। देखो असीं वोवल लभना है, स्वर लभना है, वोवल जिहनूं असीं स्वर कहने हैं, उस तो पहला की क्या होएगा, उस तो पहला एक संख्या, पहला एक संख्या यानी नंबर होवे, कहंदे नंबर एक संख्या, और अगे की क्या होया, अते तुरंत बाद एक चिन्ह सिंबल होवे, एक सिंबल चिन्ह। ठीक है, इत्थे शब्द की वरत्या उन्होंने जां, यानी इंग्लिश दे विच की वरत्या होया और। जदों जां जां और शब्द वरत्या जांदा है उदों दोनों कंडीशन दे विच जां तां आ वाली भी बाद च सिंबल होवे जां पहला एक संख्या होवे, दोनों दे विचों एक हो गया तां भी आपां नूं लैणा हैगा। दोनों की जरूरत नहीं भी दोने होने ही चाहिए है पक्का। एंड लई दोनों कंडीशन जो होंदियां, और लई दोनों दे विचों एक भी चल जाती है। तो चलो हुण इस क्वेश्चन नूं असीं करदे हां। असीं ये देखना है भी वोवल कित्थे कित्थे है, पहला आपां टिक कर लिए। देखो एक तो साडे कोले वोवल आ रहा ई, एक वोवल आ रहा ए, उस तो बाद वोवल हैगा साडे कोले आई, उस तो बाद है वोवल साडे कोले यू। 4 साडे कोले वोवल है इहदे विच। हुण कंडीशन साडे कोले ये है भी पहला संख्या होनी चाहिए है ते बाद दे विच चिन्ह। पहले वोवल ते देखो पहला संख्या हैगी है नहीं हैगी, दूजे पासे की होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, बाद दे विच वो भी है नहीं, इहनूं तो छड्ड दो, ई कट्टिया गया। ए ते आ गई, पहला संख्या हैगी है
नहीं हैगी, बाद दे विच चिन्ह हैगा, आ देखो बाद दे विच चिन्ह हैगा, इहनूं लै सकदे आ, एक गिनती च आ गया साडे ये, ठीक है। अगे गए दूसरे वोवल ते आई ते, आई तो पहला की हैगा संख्या है नहीं, बाद दे विच चिन्ह है नहीं, इहनूं भी छड्डो काटी मारो इहदे ते, यू ते आ गए। पहला साडे कोले संख्या चाहिदी सी, इन्हां ने कहा पहला संख्या बाद दे विच चिन्ह, इत्थे देखो पहला साडे कोले चिन्ह है, बाद दे विच संख्या है, उल्टा है, ये भी नहीं लेना। तो किन्ने आ गए एक, तो आंसर की होऊगा इसदा सैकेंड ऑप्शन की होऊगा इसदा राइट आंसर होऊगा की है साडे कोले एक इस तरह का साडे कोले वोवल है जिस दे पहला संख्या जां बाद दे विच की है चिन्ह हैगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि उपरोक्त प्रबंध विच सज्जे पासे तो, ये मैं सीरीज नूं दुबारे लिखता ताकि बोर्ड लैटर दे विच तुहानूं चंगी तरह दिख सके। सज्जे पासे तो 15वें तत्त तो सज्जे हत्थ 6वें स्थान ते की है, ये साडे कोले क्वेश्चन सी। पहला आपां की लेना हैगा, आपां उपरोक्त प्रबंध विच सज्जे पासे तो इधरों चलना है, आ सज्जा पासा है, इथों इधर नूं जाना है, सज्जे पासे तो राइट साइड तो, राइट साइड तो, ठीक है। क्वेश्चन दे विच यही क्या सी ना, इंग्लिश मीडियम च देखो राइट एंड तो शुरू करना आपां, देखो इन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है। राइट साइड तो किनवा 15वें तत्त, 15वां देखते हैं कि है पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां सत्तवां अठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15, 15 ते की साडे कोल ए ते असीं टिक कर लिया। फिर की क्या होया 15वें तत्त तो सज्जे हत्थ, हुण आपां किधर नूं मुड़ना, फिर सज्जे हत्थ दुबारे मुड़ना इधर नूं, सज्जे हत्थ राइट साइड ते फिर जाना है, पहला राइट साइड तो चले सी, हुण राइट साइड ते जाना है। किन्नवा क्या होया 6वें स्थान ते की है, इथों देखो आ पहला हो गया, आ दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पंजवां ते छेवां, 6वें स्थान ते की हैगा टी है, तो टी साडा की है राइट आंसर है। बिल्कुल आसान सी, पहला असीं सज्जे पासे तो 15वां देखिया, 15th देखिया, फिर उस तो उसदे राइट साइड ते की देखिया 6th देखिया, यही सानू क्या होया सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 6th क्वेश्चन, इसे सीरीज का सेम सीरीज है, सीरीज चेंज नहीं हैगा। हेठां विचों किहड़ा खब्बे पासे तो 7वें स्थान ते, देखो खब्बे पासे तो क्या होया, खब्बे पासे तो किधरों शुरू करना असीं, खब्बे पासे तो, इत्थों असीं शुरू किया खब्बे पासे तो, इधरली साइड तो, हेठां विचों किहड़ा खब्बे पासे तो 7वें स्थान अते सज्जे पासे तो 9वें स्थान दे बिल्कुल विचकार है। पहला आपां देखो इधरों खब्बे पासे यानी लैफ्ट साइड तो शुरू करते हैं, किनवें नंबर ते जाना सी 7वें ते, 7th ते जाना हैगा, 7th फ्रॉम द लैफ्ट, ठीक है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां और 7वां, 7वें ते की है साडे कोले एन है, असीं इहनूं मार्क कर लिया। और राइट साइड तो की क्या होएगा, राइट साइड तो देखिए सज्जे पासे तो की क्या होया, सज्जे पासे तो 9वें स्थान ते, 9th फ्रॉम द राइट एंड, 9वें ते, इत्थों देखो आ पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां 7वां 8वां 9वां ते 9वें ते की है टी। हुण इन्हां दे बिल्कुल विचकार देखना की है, इन्हां दोनों दे की देखना असीं बिल्कुल विचकार, इन्हां दे मिडल दे विच किहड़ी टर्म है वो देखनी है। देखो 4 इधरों छड्डते, मैं 4 इधरों छड्डते, तो विचाले किहड़ा साइन बच गया साडे कोले, आ साइन बच गया, ठीक है। ये साइन देखो आंसर जिहदे विच हैगा नहीं हैगा, क्योंकि आंसर दे विच की ए है, एच है, 4 है, एफ है, आता है नहीं गा, तो आंसर की हो साडा इन्हां विचों कोई नहीं। आप इस ते टिक करांगे नॉन ऑफ दीज दे उपर, क्योंकि जिहड़ा साडा आंसर आया इन्हां दोनों दे मिडल दे विच एन और टी दे बिल्कुल विचकार की है साडे कोले ये साइन है, ये साइन साडे कोले आंसर दे विच नहीं दिता होया, तो असीं इस नूं नहीं लेना, तो असीं इन्हां विचों कोई नहीं ते टिक करांगे। चलो अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखो की है, अजिहे किन्ने अंक संख्या, आ साडे कोले संख्या दिती हुई है 82 13, उस तो बाद है 49 67, वड्डी एक संख्या सी, इस दे विच मौजूद हैं जो कि संख्या नूं घटदे क्रम विच लिखण ते, हुण संख्या नूं की लिखना सी घटदे क्रम विच लिखण ते अपना स्थान नहीं बदलते। हुण आपां पहले देखो घटदे क्रम दे विच लिखांगे,
डिसेंडिंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ देयर इन द ਨੰਬਰ ਈਚ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਜ ਫਾਰ ਅਵੇ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नंबर एज वैन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भी हुण जदों असीं इस नूं डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखना है तो सब तो पहला वड्डी संख्या देखो कितनी है 9, फिर उस तो बाद हैगी 8, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर साडे कोल हैगा 3, फिर 2, फिर 1। ये साडे कोल जिहड़ी संख्या सी वो असीं लिख लई 9 8 7 6 4 3 2 1। जदों इसनूं घटदे क्रम दे विच लिखिया, असीं डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच इसनूं लिखिया, तो देखो जिहड़ा 4 है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो किन्ने इस तरह के जिहड़े जोड़े अपने कोले अंक सी वो इक्को ही अंक आया, तो एक साडा की है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन, एक संख्या सानूं दित्ती हुई है बिल्कुल पहलां वाले क्वेश्चन की तरह है। इसनूं जदों असीं घटदे क्रम दे विच लिखना है, कहंदे इस तरह के किन्ने साडे कोले जिहड़े अंक है उस दे विच मौजूद ने भी जिहड़ा अपना स्थान वो नहीं बदलते। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन सी, पहला संख्या लिखते हैं 5 7 3 9 4 1 6 2। और उस तो बाद हुण इहनूं असीं लिखांगे घटदे क्रम दे विच जदों लिखांगे तो सब तो पहला देखो 9, फिर 7, फिर 6, उस तो बाद 5, फिर 4, फिर उस तो बाद 3, फिर 2 और फिर 1। जो असीं डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखिया, घटदे क्रम दे विच लिखिया, तो ये साडे कोले संख्या आ गई। देखो हुण इत्थे 7 ने पोजीशन चेंज नहीं की और 4 ने नहीं की, 2 हो गए ना, तो इत्थे साडा आंसर की होगा, थर्ड ऑप्शन साडा राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगे असीं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्होंने सॉल्व करते हैं। हेठां दित्ती लड़ी दे विचकारले अंक दे खब्बे पासे तीसरे स्थान ते किहड़ा अंक है। साडे कोल जिहड़ा पहला क्वेश्चन है उस दे विच की क्या होया है, विच इज द थर्ड नंबर टू द लैफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो जिहड़ा देखो क्वेश्चन दे विच की क्या है, सब तो पहला विचकारले अंक ते जाना सी, मिडल जिहड़ा इहदे बिल्कुल मिडल दे विच अंक है वो देखना की है। देखो 1 तो लैके 9 तक तो आ हो गए, इधरों छड्डते असीं 1 तो लैके 9 तक इधर छड्डते, ठीक है। विचाले देखने किहड़ा कि 4 होर इधरों छड्डते, 4 इधरों छड्डते, तो बिल्कुल मिडल दे विच की है साडे कोले 9 है, ये मिडल दे विच। पहला आपां मिडल वाला जिहड़ा अंक है वो देखिया। क्वेश्चन की है, इस दे खब्बे पासे, तो खब्बा पासा किधर नूं होऊगा, इधर नूं होऊगा। खब्बे पासे तीसरे स्थान ते किहड़ा अंक है, इधरली साइड जाना असीं 1 2 और 3, खब्बे पासे नूं जाना इधर नूं, तीसरे स्थान ते किहड़ा अंक है 4। तो साडा जिहड़ा राइट आंसर की है सैकेंड ऑप्शन है जिहड़ा वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सैकेंड क्वेश्चन है, दित्ती लड़ी विच किन्ने 6 हन जिन्हां तो तुरंत पहला 7 आउंदा है परंतु तुरंत बाद विच 9 नहीं आउंदा। यानी क्वेश्चन दे विच की क्या होया है भी किन्ने 6 इस तरह दे है जिन्हां दे तो पहला 7 आ रहा है और बाद दे विच जिहड़ा 9 है वो नहीं आ रहा। तो ये साडे कोले कंडीशन है, ये असीं लभना हैगा। देखो असीं पहला शुरू च देखो स्टार्टिंग दे विच देखिए 6 तो पहला की होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इनू छड्ड दो। आ 6 तो पहला देखो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 5 आ रहा है, इनू भी छड्ड दो, आ वाले नू इनू भी कट दो। तो जिहड़ी आ साडे कोले कंडीशन है देखो इत्थे आ वाली ते 6 तो पहला 7 आ रहा है, बाद दे विच 9 नहीं हैगा, इनू असीं लै लांगे, एक तां साडे कोले बन गया। उस तो बाद देखो इत्थे 6 तो पहला 7 आ रहा है इत्थे भी, पर बाद दे विच 9 नहीं हैगा, इनू लै लांगे असीं, ठीक है। इत्थे 6 तो पहला साडे कोले 8 आ रहा है, इनू नहीं लेना। इत्थे 6 तो पहला 4 है, इसनू नहीं लेना। इत्थे 6 तो पहला 7 है, बाद दे विच 9 आ रहा है, इनू भी नहीं लेना, ठीक है। इत्थे 6 तो पहला 7 हैगा पर 9 बाद दे विच नहीं हैगा, इनू लै लांगे। तो किन्ने बार आया साडे कोल, 3 बार। साडे कोल किन्ने बार आया, 3 बार। तो ये साडा की है राइट आंसर है। अगला अगे क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अगे है, दित्ती लड़ी विच किन्ने 7 हन जिन्हां तो तुरंत बाद 3 नहीं आउंदा परंतु तुरंत पहला 8 आउंदा। यानी इस तरह के असीं 7 चुनने हैं जिन्हां तो तुरंत बाद 3 नहीं आ रहा ते पहला की आ रहा है 8 आ रहा है। पहला वाले क्वेश्चन के बिल्कुल नाल मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, आपां दे लड़ी दे विच लभीए तो देखो आ कंडीशन देखो, इत्थे देखो आ जगह ते
6 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ 7, ਦੇਖੋ 7 ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ? 2 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? 2 ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 4th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 7 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦਿੱਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 7 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੈਗਾ ਪਰ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੈ, 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 8 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ 7 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹੈ, 6 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੈਗਾ, 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ, 2 ਆ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 4th ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਸਤ ਅੰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਸਤ ਅੰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ 4 8 6 ਬਣ ਰਿਹਾ, 4 8 6, 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਦੇਖੋ 2 7 6 7, 2 6 ਔਰ 7, 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ 2 8 3, 2 8 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ 3 6 9, 3 6 9, ਜਿਸ ਅੰਕ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅੰਕ ਹੈ 6 ਇਹ 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 9 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 4 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੜੀ ਹੈ 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅੰਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਆਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ, ਦੇਖੋ 5 9 8 1 3 2, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 7 4 3 8। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 9 5 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ 1 8 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ 2 3, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 4 ਤੇ 7। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ 8 ਤੇ 3। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਔਰ 7ਵਾਂ। 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 4। ਜੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 4 ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਅੰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਅੰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 8 9 0 3 2 1 4 6 7 ਔਰ 5। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 6ਵੇਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊ ਅਗਲੇ ਨਾਲ 4 ਨਾਲ, 4 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 9 ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨਾਲ, 6 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, 3 ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊ, 7 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਇੱਧਰ 5 ਇੱਧਰ, 5 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਵਾਂ 7ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 6ਵਾਂ, 7ਵਾਂ, ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ 7 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਜਾਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ 13। ਹੋਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ @ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 13 ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ Z ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ ਗਏ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਆ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਟਰ B ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਲਵ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ U ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 13 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇ 4, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਰ, ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਰ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ देखो आ संख्या सी, संख्या तो बाद अखर है 1, फिर उस तो बाद जे असीं देखिए डॉलर का साइन सी, उस तो पहला अखर है 2, ठीक है। उस तो बाद अगे चलते हैं आपां, साडे कोल संख्या है, संख्या तो बाद फिर साडे कोल इंग्लिश का अल्फाबैट है, अखर है, इनू भी लेना है, किन्ने हो गए 3। उस तो बाद साइन सी, @ सिंबल सी, उस तो पहला एक इंग्लिश अल्फाबैट है, इनू भी लेना है। आ साडे कोले जिहड़ी 9 संख्या आ गई, इनू नहीं लेना। हाँ, संख्या तो बाद अखर, हाँ संख्या तो बाद अखर बन रहा, इनू भी लेना है। आ साडे कोले एक साइन आ गया, उस तो पहला इंग्लिश अल्फाबैट है, इनू भी लेना है। सिंबल तो पहला अखर ते संख्या तो बाद भी अखर होवे तो लेना है, ठीक है। आ सिंबल सी, सिंबल तो पहला अखर है नहीं गा, इनू नहीं लेना, ठीक है। संख्या देखो, होर देखो जे इत्थे चले गए आप, क्वेश्चन मार्क तो पहला साडे कोल इंग्लिश अल्फाबैट है, इनू लेना है असीं। और क्वेश्चन मार्क उस तो बाद अपने कोल साई एक सिंबल सीगा, सिंबल तो पहला फिर इंग्लिश अल्फाबैट है, इनू भी असीं लेना हैगा। अगे चलते हैं, उस तो बाद ये संख्या 1 6, संख्या तो बाद फिर साडे कोले की है देखो एक अखर है। आ देखो सिंबल सी, सिंबल तो पहला फिर सिंबल आ गया सी, सिंबल तो बाद दे विच सिंबल तो पहला भी सिंबल सी, इनू भी कट्टना है, आप छड्ड रहे हैं इनू। होर देखते हैं आप, आ साडे कोल संख्या है, संख्या तो बाद की होना चाहिए, अखर होना चाहिए, एक इनू लै लांगे। आ एक साडे कोले की सी, एक संख्या सी, संख्या तो बाद वाई की हो गया साडे कोले अखर हो गया, इनू आपां नूं लेना पऊगा, एक ये हो गया साडे कोल। उस तो बाद अगे चलते हैं, ये साडे कोले देखो एक लव है जिहड़ा इहदा सिंबल हैगा साडे कोले, सिंबल तो पहला चिन्ह तो पहला की होना चाहिए अखर, ये हैगा। तो किन्ने बन गए साडे कोले, हुण काउंट करके देखो, ये 1 2, इनू एक ही गिनना हैगा, एक पहला 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 आ 10 हो गए और आ 11 हो गई। तो साडे कोल जिहड़ा आंसर है इन्हां विच की है 6 है 7 है 9 है, तो कितना हो गया, इन्हां विचों कोई नहीं की हुआ साडा राइट आंसर होगा। थोड़े जे टफ क्वेश्चन है पर ध्यान नाल करोगे तो हो जाएंगे। अगे चलते हैं 10th क्वेश्चन। अपने कोल एक सीरीज दी हुई है LZX2MS, तो उन्होंने वो सीरीज नूं पढ़ के आप क्वेश्चन दे आंसर देने हैं। 10th क्वेश्चन दे विच तुसीं देखोगे तो की हेठां दिते विच 5 विचों 4 अखर समूह एक विशेष तरीके नाल इक्को जिहे हन अते इस लई एक समूह बनता है, हेठ लिखियां विचों किहड़ा उस समूह नाल संबंधित नहीं है। तो इन्हां विचों असीं ये दसना है भी किहड़ा, जिहड़े देखो NSR PJW उस तो बाद BQF और H6W, इन्हां दे विचों किहड़ा जिहड़ा हैगा वो अपने आंसर दे नाल संबंधित नहीं हैगा, वो असीं दसना हैगा। तो हुण जे असीं देखीए तो इहदा आंसर असीं किवें देवांगे, जिहड़ा साडे कोले N पहला ऑप्शन ते आपां चलदे हैं, ये थोड़ा जिहा ध्यान नाल करन वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन सी साडे कोल NS और R, NS और R, थोड़ा जिहा इहनूं आपां खुला लिखदे हैं NSR। जे N की असीं पोजीशन देखिए इस क्वेश्चन दे विच देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, N किहड़े नंबर ते है 10 ते है, इधरों गिन लगी जे आपां N का नंबर कितना 10। वैसे इंग्लिश अल्फाबैट के 14 होंदा है, पर आपां आंसर इस सीरीज के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। S किन्नवें नंबर ते 6वें ते इस S आ देखो आ रहा, इहदा नंबर की है 6 है। उस तो बाद जे R की गल करिए देखो N किन्नवें सीगा साडे कोले 10 ते 11 12 13 14, R किन्ने ते 14 ते, तो ये साडे कोले इहदी पोजीशन सी। जे असीं 10 चों 4 घटा दईए तो कितना आ गया देखो 6, और जे 10 दे विच असीं 4 जोड़ दईए तो कितना आ गया 14। इस तरीके नाल पहला ऑप्शन दिता होया। हुण जे असीं गल करिए तीसरे ऑप्शन की, एक बार मैं दूसरे नूं छड्ड रहा, पहले ऑप्शन नूं आपां क्लीयर कर लिया। तीसरे ऑप्शन की जे गल करिए उत्थे हैगा BQ और F। जे B का असीं नंबर देखिए, B देखो R किन्नवें ते सी साडे कोले, R 14 सी, 5 फिर आ 15 हो गया,
आ 16 हो गया और बी का नंबर कितना हो गया 17। बी साढ़े को 17वें नंबर पर। क्यू देखो कितने क्यू आ रहा, ठीक है। एन का एन 14 एन सीगा 10 ते 11 12 13 तो क्यू किन्ने ते साढ़े को 13 ते और एफ किन्ने ते उस तरह 21 ते। तो इत्थे भी उही रूल लग्या होया 17 चो जो असीं 4 घटाने हैं तो साढ़े को 13 बनने, 17 के जो असीं 4 जोड़ते हैं तो 21 बन रहे। इस लड़ी के तुसीं गिनना है भी आ देखो पहले नंबर पर है, आ दूसरे ते है, ये तीजे ते है, आ चौथे ते है, पंजवें ते है, छेवें ते, सत्तवें ते, अठवें ते, सारे नंबर लिख लेने हैं 10 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, ये सारे तुसीं लिखने हैं। थोनू पता लग जाएगा किहड़ा किन्ने ते 16 17 18 19 20 21 फिर 22 23 24 25 26 अगे फिर 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35, ये सारे लिख लेने इस तरीके नाल। हुण बड़ा आसानी नाल क्वेश्चन कर लांगे आपां। अगे देखो अगला जिहड़ा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन की गल करिए H6 और W। H देखो किन्ने नंबर ते H 23 ते, 6 किन्ने ते है 6 देखो 6 हैगा 19 ते, W किन्ने ते है 27 ते। इत्थे भी वही रूल लग्या 23 चो 4 घटाए 19 23 च 4 जोड़े 27। हुण आ गया अपना तीजे ऑप्शन ते जिहड़ा आपां छड्डिया सी सैकेंड ऑप्शन, वही साडा आंसर है। उत्थे जिहड़ा रूल है ये रूल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? पी 2 बार है। पहली गल तो एक तो पी 12 नंबर पर देखो, एक 31 नंबर पर, एक कित्थे है 31 ते। पी का नंबर जां तां 12 है तो जां पी का नंबर कितना है 31 है, और जे है किहड़े नंबर ते 34 ते। जे किन्ने ते है सॉरी जे है 35 ते, जे किन्ने ते है 35 ते, ठीक है। तो ध्यान नाल जे असीं देखिए जिहड़ा जे का नंबर है वो ज़्यादा है इन्हां नालों, पी नालों की है वो ज़्यादा। पहले अपने जिहड़े बाकी सारे आंसर सी उन्हां 'च 4 घट रहा सी, जे असीं इहदे चों 4 घटा दांगे 12 जां 31 चों तो 35 नहीं आ रहा, ठीक है ना। कि जिवें पहलां वाले जिहड़े 3 ऑप्शन सी पहले दे विचों 4 घटाउंदे सी तो दूसरा जिहड़ा नंबर है वो आ रहा सी, तो इत्थे नहीं आ रहा। तो इस करके जिहड़ा सैकेंड आंसर है साडा वो इन्हां दे नालों डिफरेंट है, उहदा कोई संबंध नहीं हैगा। तो इन्हां ने यही कहा सी उस समूह नाल संबंधित नहीं है। आपां इन्हां विचों किहड़ा सी जिहड़ा भी इन्हां दे नालों वखरा वो चुनना सी। तो सैकेंड ऑप्शन साडा राइट आंसर है। थोड़ा जिहा जिहड़ा इहदा लेवल है वो टफ है बेटा, क्योंकि जिहड़ा NTSC का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस लेवल के हुण क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, जो तुसीं इन्हां नूं करोगे तो तुहानूं क्वेश्चन अपने आप ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो अगे फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं की है। सैकेंड क्वेश्चन की है, कहते जे असीं 2 तो शुरू करिए, जे असीं 2 तो शुरू करिए करते हुए हर चौथे अखर जां अंक नूं छड्डदे जांदे आ, कटदे जांदे आ, कहण दा मतलब तां तुहाडे खब्बे तो किहड़ी साइड तो खब्बे तो 14वें स्थान के सज्जे तो 7वें स्थान पर की होवेगा। पहलां आपां कटिंग शुरू करते हैं भी किहड़े किहड़े कट्टे जाणगे। असीं 2 तो शुरू करना, पहलां असीं 2 नूं कटता, फिर असीं किहनूं कटता चौथा अखर 1 2 3 4 के कट्टिया गया। इस तो बाद चौथा अखर 1 2 3 4 पी कट्टिया गया। फिर पी तो बाद किहड़ा कट्टिया जाऊगा ए कट्टिया जाऊगा। ए तो बाद किहड़ा कट्टिया जाऊगा डी कट्टिया जाऊगा। फिर डी तो बाद किहड़ा कट्टिया जाऊगा 7 कट्टिया जाऊगा। फिर 7 तो बाद किहड़ा कट्टिया जाऊगा 8 कट्टिया जाऊगा चौथा अखर। 8 तो बाद किहड़ा कट्टिया जाऊगा ओ कट्टिया जाऊगा। तो इस तो बाद चौथा पूरा नहीं होया, ये कट्टे गए। हुण असीं खब्बे तो 14वें अंक ते स्थान पर देखना की है। देखो खब्बे तो इधरों चलांगे असीं 3 आ हो गए 3 ते 3 6 6 ते 3 9 9 ते 3 12 12 ते 2 14 14 ते तो साडे कोल हो गया सी। ये सी तो हुण फिर की क्या है 14वें स्थान के सज्जे तो 7वें स्थान पर, इत्थों असीं फिर इहदे सज्जे जाना है। 14वें स्थान पर जिहड़ा सी की सीगा सी सीगा, ये 14वां सी साडे कोले। इस तो आपां सज्जे पासे फिर जाना, किन्नवें स्थान पर जाना 7वें ते 7th ते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7वां की आ गया W। तो साडा जिहड़ा आंसर है वो की होना चाहिए हैगा, फोर्थ आंसर साडा राइट आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सी, 2 तो शुरू करके पहला आप हर चौथा जिहड़ा अखर सी जां अंक सी उहनूं कट्टिया, फिर उस तो बाद खब्बे तो 14वें स्थान तो फिर 7वें स्थान पर गए, यानी 14 ते 7 21 मान लेना सी जिहड़े बच गए उन्हां च, ठीक है।
चलो अगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगे है हेठां दित्ती लड़ी विच अजिहे किन्ने चार हन, किन्ने चार हन जिन्हां तो तुरंत पहलां दी संख्या दी जोड़ी चार तो पहलां जिहड़े दो अंक होणगे, मान लो पहला ते दूसरा अंक इत्थे हैगे कोई, तो उस तो बाद वाले भी दो अंक होणगे इत्थे तीसरा ते चौथा, ठीक है। दो अंक उस तो पहला है, दो अंक उस तो बाद है। की क्या होया तुरंत पहलां दी संख्या दी जोड़ी का गुणफल और इस दे तुरंत बाद दी संख्या दी जोड़ी का गुणफल की है वध है। आ जिहड़ा गुणा है पहलां वाली गुणा है पहले ते दूसरे दी, आ जिहड़े बाद वाले दो सी उन्हां दी गुणा तो की होनी चाहिए है ज़्यादा होनी चाहिए है, वड्डी होनी चाहिए है। तो आप देखते हैं पहला देखो इत्थे देखो आ जगह ते चार तो पहला 8 तिया 24 बनता है, फिर 2 5 10 बनता है, इत्थे 10 इत्थे 24 वधदा है ना, एक तो ये लेना पऊगा सानूं। उदों बाद इत्थे देखो आ जगह ते 8 9 72 ते 7 तिया 21 वध बन रहा है ना, 8 9 4 7 3 सी 8 9 72 7 तिया 21 ठीक है बड़ा बन रहा है। होर देखते हैं इस तरह एक साढ़े को आ रहा 4 6 4 5 4, चार तो पहला की सी 4 6, उस तो बाद की है 5 4, देखो 6 चौका 24 तो 5 चौका 20 वध बन रहा है, ठीक है एक ये बन गया। होर देखते हैं इस तरह के कई होर भी होणगे। उपर देखो आ देखो एक आ रहा जे आप इत्थे देखिए इनू देखिए 4 तो पहला है 4 5 और बाद दे विच है 3 2, इत्थे ही वध है 4 5 20 तो 3 2 6। होर देखते हैं ये लभ गया सानू एक आ रहा आ 4 है जिहड़ा 4 तो पहला है 7 3, उस तो बाद है 2 4, ये भी वध है 4 7 21 तो 2 चौके 8 5 तो हो गए। होर देखते हैं जो कोई लभ जे आ 4 देखते हैं आप आ 4 तो देखिए तो आ 2 दूनी 4 तो आ 6 चौका 24 वध है, ये नहीं लेना। इत्थे भी देखिए 5 दूनी 10 तो 5 दूनी 10 इत्थे बराबर आ रहा आ 4 दे लई, इनू भी नहीं लेना। जिहड़ा आ 4 है इत्थे भी नहीं बन रहा, तो 5 ही बने साडे कोले। किन्ने बने साडे कोले 5, तो राइट आंसर की है आ वाला, ठीक है। थोड़ा जिहा ध्यान नाल करना पऊगा क्वेश्चन नूं। अगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन। एक सीरीज दी हुई है सानू, इस नूं पढ़ के असीं क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन की है उपरोक्त प्रबंध विच अजिहे किन्ने चिन्ह हन, यानी सिंबल सानू पुछया होया अजिहे किन्ने चिन्ह हन जिन्हां तो तुरंत पहला स्वर आउंदा है, जिन्हां तो तुरंत पहला स्वर आउंदा, यानी इस तरह के असीं किन्ने साइन है सिंबल है, यानी सिंबल ही लिख लैंदे आपां किन्ने इस तरह के जिहड़े सिंबल है जिन्हां तो तुरंत पहला की आ रहा है स्वर आ रहा है, यानी वॉवल आ रहा है, और तुरंत बाद की है संख्या आउंदी एक नंबर आउंदा है। ये साडे कोल जिहड़ा फॉर्मेट है इस दे अकॉर्डिंग असीं क्वेश्चन का आंसर लभना है। पहला असीं सिंबल देखो, पहला जिहड़ा सिंबल है स्टार हैश, इस तो पहला देखो संख्या आ रही है, सिंबल तो पहला की आ रही है संख्या आ रही है, होना की चाहिए सी वॉवल, नहीं आया तो इनू नहीं लेना। होर देखते हैं आपां ये नहीं आ रहा, एक मिनट, सिंबल तो पहला साडे कोले की होनी चाहिए है वॉवल होना चाहिए, आ रहा इत्थे देखो सिंबल तो पहला वॉवल और वॉवल तो बाद नंबर है ना। होर देखो आ सिंबल तो पहला वॉवल नहीं सीगा, इनू नहीं लेना। आ हैश एक सिंबल सी, सिंबल तो पहला वॉवल नहीं सीगा, इनू नहीं लेना। डॉलर तो पहला वॉवल नहीं हैगा, इनू नहीं लेना। एक एक नू चैक कर लो, इत्थे देखो इहदे तो पहला एक वॉवल नहीं हैगा। होर किहड़ा साडे कोले साइन कोई बचा नहीं बचा, तो साडे कोले इहदा आंसर सिर्फ 1 ही आ रहा है, एक ही इहदा आंसर सी, तो एक ते असीं टिक कर दांगे, ठीक है। इत्थे जिहड़ा आ साडे कोले सी इत्थे बने सिंबल तो पहला वॉवल, वॉवल तो बाद नंबर यानी संख्या, होर किते नहीं बन रहा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सैकेंड क्वेश्चन की है हेठां दिते किहड़े तत्तां दी जोड़ी विच दूजे तत्त तो तुरंत बाद पहला तत्त आउंदा है। तो इनू आपां देखते हैं आंसर च सानू दिता होया देखो 5 ते हैश, क्वेश्चन 5 हैश है ना पहला आंसर, देखो हैश तो बाद 5 आउंदा,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 5, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ MT, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਔਰ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਉਲਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ 3F ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ F3। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ F ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, 4th ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ 3F ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, F ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ F ਤੱਤ ਯਾਨੀ F3 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 7 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, 3, 4th ਆਨਸਰ 3। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।